Good morning, children. I have started inorganic reaction series, and in which I have discussed about reaction of metal with non-metal. Among non-metals, I have taken already hydrogen, deuterium, and carbon. So I am sure all of you are now aware about that when metal reacts with non-metal, it forms metal nitride, metal sulfide, metal oxide, metal hydride. So when metal reacts with non-metal, it will form metal non-metalide. So in the same way, today I am going to start reaction of metal with nitrogen, phosphorus, As, Sb and sulfur. So I'm going to continue with the same reaction which we have discussed in the previous videos. Like what we have discussed that when metal is treated with H2 molecule, it forms metal hydride. When metal is treated with D2 molecule, it forms metal deuteride, right? When metal is treated with carbon, it forms metal carbide. So you see the name of these elements are same, only the thing is that you need to suffix these non-metals with ide. Similarly, if you will go with nitrogen, so it will form what? Metal nitride. The product is what? Metal nitride. So you see the reaction of hydrogen, deuterium, carbon and nitrogen all are similar. Only the thing is that you have to remember just some formulas of a particular metal. Like you see, I have taken in this case the first A group metal, right? तो first A group metal में हमने इसमें लिया हुआ है ये metal, ये सारा एक ही metal है. It may be lithium, maybe sodium, maybe potassium, maybe rubidium, maybe cesium, right? So you see these reactions are common. If you consider phosphorus, it is also responsible to form M3P. So these compounds are same, reactions are same, only the thing is that you have to just review the temperature required, right? तो इसमें आप यदि टेम्परेचर आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल हीट लिख करके निकल सकते हो. क्योंकि रेयर किसी भी एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि पूछा जाता है ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगा. या तो आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन हमारा रूम टेम्परेचर पे होगा या हाई टेम्परेचर, दो में से एक ही चीज़ें होती है. समटाइम्स कैटलिस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है. लेकिन आज जो मैं रिएक्शन ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रोजन. Because we had already done with carbon, deuterium and hydrogen. We have also discussed about what hydrogen, that when metal hydride is treated with water molecule, it will form metal hydroxide and H2 gas. Similarly, when metal deuteride is treated with water molecule, it will form what? Metal hydroxide and DH. Similarly, it will form what? Metal hydroxide. ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे लिया हुआ है फर्स्ट ए ग्रुप. सो आई विल राइट है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या होगा? कार्बन का हम देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल मिल सकता है. इसी तरीके से हम इसके बारे में भी आज बात करने जा रहे हैं, राइट? सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रोजन. Okay, so write down reaction of metal with nitrogen will form metal nitride. Metal nitride. I have taken here the first A group metal, and among first A group metal only lithium shows reaction with this nitrogen molecule, and that's too at high temperature. And you see when this molecule is treated with water molecule, the product of the reaction is what? Metal hydroxide with the formation of ammonia gas. You see again the reaction is similar to what? The reaction of hydrogen, the reaction with carbon and the reaction with deuterium. So reactions are common and very common reactions are given. Like यदि हम लोग रिएक्शन कराएं लिथियम का तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा लिथियम का नाइट्राइड. इसका रिएक्शन आप कराओ वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? ये लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस. सिमिलरली
इफ़ मैग्नीशियम इज गिवन क्या बनाएगा बताओ, ये बनाता है Mg3N2। इसका रिएक्शन आप कराओगे वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस विथ अमोनिया गैस। सिमिलरली यदि हमने रिएक्शन करा दें एल्यूमिनियम के साथ, राइट, तो ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड विथ वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड विथ अमोनिया गैस। तो इसमें मैं आपको ये बताना क्या चाह रहा था कि जितने भी हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल होता है सब में ये क्या बनाएगा, मेटल नाइट्राइड, और इसका रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस बनाएगा। इसी तरीके से यदि मान लो आपको कैल्शियम का रिएक्शन दिया गया N2 के साथ तो क्या बनाएंगे हम, Ca3N2 बना देंगे, ठीक है नहीं। तो अब एक चीज़ देखना है कौन कौन सा मेटल हमने कंसीडर किया है इसमें। तो देखो कि ऑलमोस्ट जो हमारा एस ब्लॉक का मेटल होता है ना, सारा मेटल तो नहीं लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम मेटल कह सकते हैं कि ये रिएक्शन करेगा। जैसे आप सेकेंड ए ग्रुप की बात करो तो ऑलमोस्ट सारे, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, सारे रिएक्शन करते हैं। सिर्फ अंतर कहाँ पे आता है, टेम्परेचर का थोड़ा सा बैरियर होता है जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से इसमें देखोगे ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में अमोनिया गैस बनेगा। तो आप एक चीज़ देखोगे जो भी रिएक्शन है हमारा मेटल का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ सारा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब इसमें इसी के साथ और हम क्या पूछ सकते हैं कि भाई यदि हमने नाइट्रोजन को नहीं कंसीडर करना, बाय द वे आपको फास्फोरस का रिएक्शन दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सिर्फ ये हटा देना बस। आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, आप लिखो यहाँ पे P4, यहाँ पे लिखो P4, ये सारा क्या है P4 ही लिखना और कुछ भी नया नहीं करना, ठीक है। और आपको कुछ भी यहाँ नया नहीं करना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नया में यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ क्या करोगे आप M3P, यहाँ पे क्या लिखेंगे M3P, यहाँ पे क्या लिखेंगे M3P2, यहाँ पे क्या लिखेंगे ALP, यहाँ पे क्या लिखेंगे Ca3P2। तो देखो एक चीज़, द फॉर्मूला इज़ ऑल्सो सेम। सो आप एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे N2 भी ले सकते हो, फास्फोरस भी ले सकते हो, AS भी ले सकते हो, Sb भी ले सकते हो। आप इसमें से कोई सा भी एक नॉन मेटल कंसीडर कर सकते हो। जिस किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन आप इसमें कंसीडर करोगे आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। और इसका रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ कराएंगे तो देखो चेंजेस कहाँ पे करने हैं, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, ये PH3 बन गया। देखो हर एक के केस में क्या मिलता है, वी हैव हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। So my dear, remember when metal non-metal iode is treated with the water molecule, the product of the reaction is always metal hydroxide and non-metal hydride. In this case the phosphorus is present, so I have taken what, phosphorus का hydride. तो I hope कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे, ठीक है ना। तो इसी के आगे जैसे मान लो आपको दिया गया है रिएक्शन में कि क्वेश्चंस अब कैसे पूछे जाएंगे, इसमें कैसे दे दिया जाएगा, इसी रिएक्शन पे इस क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा। तो देखो एक दिया जाएगा, एक मेटल है, मेटल का रिएक्शन है, आप किसी गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिया जाएगा। यहाँ जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये ट्रिपल बॉन्डेड गैसेस मॉलिक्यूल है, एक ये दे देगा और कहता है कि ये रिएक्शन करेगा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के बाद जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, ये B। अब B का फर्दर आप रिएक्शन कराते हो वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो बनाएगा C और ये बनाएगा D। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता, एक दिया जाएगा इफ़ यदि ये हमारा कंपाउंड है फर्स्ट ए ग्रुप का तो इसमें ये B क्या हो सकता है, एक बात ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ B। अब इसका रिएक्शन यदि वाटर के साथ हम कराएंगे तो देखो ये C है, C क्या हो सकता है या D क्या हो सकता है। D का रिएक्शन यदि आप HCl के साथ कराते हैं तो हो सकता है ऐसा लिखा जाए कि ये वाइट फ्यूम्स देता। तो वाइट फ्यूम्स किसके कारण होता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। तो इसमें हम जो भी बातें कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्डेड है, तो वो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो ट्रिपल बॉन्डेड होता है बच्चे, तो मोस्टली नाइट्रोजन होता,
ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, लिखा कैसे होगा? लिखा मैंने क्या है, X2 जानबूझ के लिखा है। X2 देखा आपने, आपको होगा अच्छा ये तो हैलोजन होगा। फर्स्ट साइट में जो हमारा जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम उसमें कहते हैं यार X2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन मेटल होगा। बट ये याद रखना, कई बार आपको कहीं ना कहीं पे कोशिश करते हैं एग्जामिनर कि हम बच्चों को इस तरीके से लिखें ताकि बच्चा थोड़ा तो कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा तो औरों के रेस्पेक्ट में थोड़ा तो सोचे। क्यों? क्योंकि ये आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे जेईई मेन ले लो, चाहे नीट ले लो, कोई भी सभी एग्ज़ाम ले लो, आप एडवांस ले लो, यहाँ पे जो मेन प्रोसेस है वो सिलेक्शन नहीं है। वहाँ यहाँ पे मेन प्रोसेस ये है कि हाउ टू रिजेक्ट द चिल्ड्रन। सो to reject the children, the reason is very simple, that the number of seats are limited and they have to induct few students out of lakhs of students. So for that they write question in such a way so that students must get stuck up, एटलीस्ट वो क्वेश्चन में फंसे, समय लगा दे। इसलिए देखोगे क्या, जो हमारी बातचीत होती है मैक्सिमम बच्चों से, वो कहते हैं कि सर समय तो नहीं था, नहीं तो हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यह भी एक तरीका है कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस लिखते हैं। तो देखो इसमें मैंने एक छोटा सा रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, और इसमें मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ट्रिपल बॉन्ड बना करके यहाँ पे मैंने शो तो कर दिया, मेंशन तो कर दिया। अब आप एक मैंने कहा ना कि आप सोचोगे ना कि हैलोजन हो सकता, बट पॉइंट क्या है, ये हैलोजन नहीं हमने लिया है, और हमने यहाँ पे देखो टेम्परेचर हाई लिख दिया है। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि बी क्या है, बी का बताइए फॉर्मूला क्या होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है सी क्या है, ठीक है, और ये क्या है, ये कहता है वाइट फ्यूम्स है, तो डी क्या हो सकता है। तो ये देखो, यदि हमने एम को क्लासिफाई कर दिया कि ये फर्स्ट ए ग्रुप है, तो मोस्टली जानते हो क्या, यदि एम की हम बात करें तो सबसे पहले लिथियम ही हमारे पास आता है, क्योंकि अमंग दीज मेटल्स लिथियम इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और नाइट्रोजन क्या है, ये जो N2 मॉलिक्यूल हमने लिया है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल। तो यदि ये मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है, इवन देन इफ यू वांट टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, यू नो फॉर दैट यू नीड टू कंसीडर द हाईली रिएक्टिव मेटल, एंड अमंग दोज मेटल्स यू नो द लिथियम इज टॉप ऑफ द टेबल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो लिथियम क्या होता है, मोस्ट एक्टिव होता है, सो आई हैव कंसीडर है लिथियम। नाउ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो बी क्या बन जाएगा बताओ, Li3N बन जाएगा। इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ कराएंगे तो ये क्या है, LiOH बन जाएगा। LiOH क्या होता है बोलो, बेस होगा। इसमें यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताइए pH का वैल्यू क्या होगा, इसमें pH का वैल्यू क्या होगा। तो pH का वैल्यू बेटा आप ये तो बड़े आसानी के साथ कह दोगे, तो वैल्यू ऑफ pH विल बी मोर देन 7। हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले pOH क्या होगा, तो याद रखना pOH की यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, देन pH विल बी मोर देन pOH विल बी लेस देन 7। बात समझ में आती है। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग इस पे फ्रेम करते हैं। अब इसीलिए मैंने छोटा सा सीरीज़ तैयार किया है जिसमें आप सारे लोग इन बातों को पढ़ो, इस बातों को याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा, यहाँ पे हमारा वाइट फ्यूम्स है, ये हमारा क्या डी के अमोनिया है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अब मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, मैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल के सीरीज में जैसे ले लिया हमने मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑफ फास्फोरस के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, Mg3P2, और इसका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो क्या बना देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा बच्चों, फॉस्फीन का गैस। तो इसी बात पे बताओ, यदि हम लोग कैल्शियम का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताना। कैल्शियम का रिएक्शन कराएंगे हम लोग फॉस्फोरस के साथ तो क्या बनता है, ठीक है। या फिर बेरियम का रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस के साथ तो क्या बनेगा। आई होप नाउ यू कैन आंसर। इवन यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि नाउ ऑल ऑफ यू आर यूज्ड टू ऑफ दिस। आप समझ चुके हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है।
इसी तरीके से यदि आपको और कोई रिएक्शन दिया गया, जैसे बाय द वे आपको दिया गया सोडियम का रिएक्शन देना है सल्फर के साथ, तो क्या बनाएंगे आप, सोडियम का सल्फाइड, और इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओ तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। साथ में क्या मिलेगा, H2S गैस मिलेगा। तो याद रखना, हमें क्या याद रखना है, मेटल विथ सल्फर विल फॉर्म मेटल सल्फाइड, विच ऑन रिएक्शन विथ वाटर विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2S गैस। ठीक है, तो आज जो मैंने डिस्कस किया है, कौन कौन सा मेटल लिया, आप फास्फोरस की जगह पे और क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे बाय द वे आपको कैल्शियम विथ AS दे दिया गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट CA3AS2, और इसका रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ कराओगे तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में AHS3। तो आज जो मैंने लिया है नॉन मेटल, उसमें क्या क्या लिया हमने, नाइट्रोजन की पूरी फैमिली ले ली हमने और सल्फर लिया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक ख़त्म कर दिया। आई होप कि आप सब सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल में ऑक्सीजन का रिएक्शन मेटल के साथ, और उसके बाद उसे दिन हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हैलोजेंस के साथ। ठीक है, ये दो नॉन मेटल का रिएक्शन हमारा बचा हुआ मेटल के साथ, ये सारे आप लोग प्रैक्टिस करोगे और इसको कोशिश करोगे 1 या 2 बार कम से कम लिखो, लिखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। और साथ साथ लिखो भी, लिखने के साथ साथ हमारे इस वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, जो बच्चा क्लास 11th एंड 12th में, उन बच्चों को बताओ। ठीक है, इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, तो कमेंट्स में लिख दो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।